All right, guys, let's start paper 5, planning analysis and evaluation paper for October, November 2022, variance 51. Let's see what we have in the paper. Okay, seems like we have redox reaction. Okay, let's see. Aqueous potassium magnate 7. Okay, आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आप ये भी जानते हैं कि इसका कलर पर्पल होता है and it has a purple color. Okay, can be used to determine the amount of iron present in a sample of iron wire by redox titration. Okay, तो redox का मतलब होता है जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो। इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा होगा क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑब्वियसली, राइट। Before potassium magnate 7 can be used, its concentration must be determined using aqueous sodium ethane diet made from the hydrated solid. Okay, let me clear one thing. मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाई है और मैंने उस केमिस्ट्री में बताया है कि इथेन 1 आयंस सोडियम इथेन डायोएट एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, सो ये भी जहन में रखिएगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अमाउंट ऑफ आयरन वायर जो है वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। Calculate the mass of this crystal required to make 250 cm cube of 0.2 mole per dm cube sodium ethane diet standard solution. Okay, guys, first of all, let's find out the MR of this crystal, Na2C2O4.2H2O. So MR of this crystal needs to be like this: 23 times 2 plus 12 times 2 plus 16 times 4 plus 2 times 18. So it's going to be around 170.0. All right, that's the MR of this compound. We know the concentration, we know the volume, we can find the moles. तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 centimeter cube of this solution contain 0.200 moles. If we have 250 cm cube, obviously moles of Na2C2O4.2H2O कितने हो जाएंगे? 0.05 moles, I believe. Okay, now we know the moles, we know the mass, we can find out the, we know the MR, we know the moles, we can find out the mass, right? So last point is mass of Na2C2O4.2H2O. So जो moles है मेरे पास 0.05, मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा MR से, which is 170.0. So मेरे पास मास आ जाएगा 8.5 ग्राम, ठीक है। और जाहिर सी बात है मैंने यहाँ 170.0 लिया है तो मैं 8.50 ग्राम लूंगा, ठीक है। ऑलराइट, next is describe how the student should accurately prepare 250 cm cube of 0.2 mole per dm cube sodium ethane diet standard solution from the weight sample of this of mass calculated in A1. In your description you should include the names and capacities of any apparatus used. So भाई मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस 8.50 ग्राम को ट्रांसफर करूंगा 250 cm क्यूब ऑफ बीकर में, और उस 250 cm क्यूब बीकर के अंदर मैं 100 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके मिक्सचर को स्टर करूंगा अच्छी तरह, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं
transfer 8.50 gram sample in 250 cm cube beaker. Okay, add 100 cm cube of water. In fact, distilled water. Okay, मतलब हम जब भी वाटर ऐड करते हैं मीनिंग हम डिस्टिल वाटर की ही बात करते हैं. सोल्यूशन तो हमेशा डिस्टिल वाटर में ही बनता है, राइट. स्टर द मिक्सचर वेल ताकि अच्छे से डिसॉल्व हो जाए. 8.50 ग्राम. मिक्सचर को स्टर करने के बाद मैं इस मिक्सचर को ट्रांसफर करूंगा 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. Transfer this solution in a 250 cm cube volumetric flask. ठीक है. ट्रांसफर करते वक्त यकीनन कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो इस बीकर के अंदर रह जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, इस बीकर को डिस्टिल वाटर से वॉश करूंगा और फिर उस वॉशिंग को भी मैं इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर दूंगा. Wash the beaker. With distilled water. Add these washings. Add these washings into the volumetric flask. Okay. फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फर्दर डिस्टिल वाटर ऐड करूंगा ताकि मैं इस 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को मेकअप कर सकूं. मेकअप this flask with distilled water up to his mark. ओके. उसके बाद मैं फ्लास्क को बहुत अच्छी तरह से शेक करूंगा. शेक द फ्लास्क थॉरली टू मिक्स द कंटेंट वेल. Shake them last thoroughly to mix the content well. Okay. I hope it makes sense to you. Ethane dioate ions reacts with manganate 7 ions according to the ionic equation shown. That's a redox reaction, guys. That's what we have done in electrochemistry in redox reaction. A 25 cm cube of 0.20 mole per dm cube ethane dioate ions required 18.40 cm cube manganate ions for complete reaction. Calculate the concentration of aqueous potassium manganate 7. Give your answer to 3 significant figures. Okay, 3 significant figures का आंसर देना है मैंने. 3 significant figures में आंसर देना है. Okay, so मुझे concentration मालूम है, मुझे volume मालूम है. I can find the moles सबसे पहले, right? तो मेरा यहाँ से first step क्या होगा, 1000 centimeter cube contain 0.200 moles of C2O42 negative. If we have 25.0 cm cube, तो बताइए moles कितने हो जाएंगे. तो moles of C2O42 negative आ गए मेरे पास 5 into 10 to the power minus 3 moles, right? According to the equation
MnO4 नेगेटिव और C2O4 में 2:5 का रेशो है एज यू कैन सी। तो अगर मैंने यहाँ पर 5 × 10⁻³ मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो बताइए मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव हो जाएंगे बेटा 2 × 10⁻³ मोल्स, राइट। अब ये जो मोल्स मेरे पास आए हैं ये 18.4 cm³ ऑफ मैग्नेटाइंस में थे। सो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड स्टेप 18.40 cm³ contain 2 × 10⁻³ moles of MnO4 नेगेटिव। तो अगर कंसंट्रेशन को हमने 1000 cm³ में कन्वर्ट कर लिया है तो कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 नेगेटिव आयंस कितनी हो जाएगी? मेरे पास आ रही है 0.1086 मोल पर DM³। तो अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 0.109, ओके, मोल पर DM³। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, आई होप यू गेट द लॉजिक। And the next part of the question, in another experiment, a student uses 0.0200 mole per DM³ magnetines to analyze the percentage of iron in a sample of iron wire using the following method. The mass of iron wire is recorded. Okay. The iron wire is dissolved in 20 cm³ of excess of sulfuric acid. Okay, that's the reaction, guys. कि आपने iron wire लिया, उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड में प्लेस किया। ऑब्वियसली जब रिएक्शन होगा सॉल्ट बनेगा आयरन 2 सल्फेट का और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। एंड मेड अप टू अ वॉल्यूम ऑफ 250 cm³ विद डिस्टिल्ड वाटर। ऑब्वियसली ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर हम यूज कर रहे हैं ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के लिए होगा, ठीक है। Now the next is the iron reacts and dissolves in sulfuric acid to form Fe2+ ions. Okay, a 25 cm³ sample of this Fe2+ ion, that's the important reading, important volume. Containing solution is titrated with 0.02 mole per DM³ magnetines. The ionic equation between this, ये ionic equation important है guys, ये भी हमने की हुई है, याद रखिएगा। ये 5 मोल है, ये 1 मोल है, तो 1:5 का रेशो इन दोनों में। The student results are shown in the table. Okay. All right. वो कह रहे हैं circle the titers the student should use to obtain the most accurate value for the volume of 0.02 mole per DM³ that is needed to react with 25 cm³ with the prepared iron solution. Explain your answer. Okay. Okay, guys. Okay. अच्छा, पहली तो बात ये कि भाई आप एक एग्जैक्ट वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, तो एक एग्जैक्ट वॉल्यूम को यूज करेंगे तो उसको मेजर करने के लिए आप पिपेट यूज करेंगे, सही। शूट, तो ये यूज पिपेट, ठीक है। और दूसरी बात, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यूज वो होती हैं जिनमें डिफरेंस 0.1 ± 0.1 cm³ का हो, ऐसा ही है ना। मुझे और आपको मिलके ये डिफरेंस देखना है पॉइंट, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, अच्छा सर्किल करने के लिए कह रहे हैं, तो 44.3 और 44.40 इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 0.1 का है। तो इसका मतलब ये दोनों टाइटर वैल्यूज जो हैं वो 0.1 cm³ के डिफरेंस से एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यूज होंगी KMnO4 के वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये बात, the difference between the two concordant readings
must be plus minus 0.1 cm cube. Hence, this difference exists in titration in in circle values. ठीक है, ओके। शूट। एंड गाइस ये भी तो देखो ना, अगर आपने ये वॉल्यूम आयरन का सोल्यूशन जो है वो आपने पिपेट से लिया है, तो ऑब्वियसली ये जो एवरेज वैल्यू ले रहे हैं आप, ये ब्यूरेट से ले रहे होंगे आप, ठीक है, ये भी याद रखना। अगर ये पिपेट से ले रहे हो, ये ब्यूरेट से, इसका मतलब पिपेट, इसका मतलब जो आपका KMnO4 है वो ब्यूरेट के अंदर, और आपका जो आयरन सोल्यूशन है वो कॉनिकल फ्लास्क में है। ये बात तो कंफर्म हो गई यहाँ पर, सही है। नेक्स्ट, the burette used for the titration has graduations every 0.1 centimeter cube. Calculate the maximum percentage error in the titration in the titer of titration 2. यानी इस titration 2 के टाइटर के लिए आपने निकालना है परसेंटेज एरर। शो योर वर्किंग। अच्छा भाई, तो पहली तो बात ये कि एरर इन वन रीडिंग क्या होता है, ये होगा आपके पास 0.1 cm क्यूब, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 0.05 cm क्यूब। ये एरर इन वन रीडिंग आ गई, ठीक है। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के अंदर एरर इन वन रीडिंग कितना होता है, 0.05। और जाहिर सी बात है, हम ब्यूरेट की जो रीडिंग है वो 2 टाइम्स नोट डाउन करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल, राइट। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा और डिवाइड करूंगा उस वॉल्यूम से जो कि टाइट्रेशन 2 में गिवन है, विच इज 44.30, इंटू 100 करूंगा परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 0.226%। ओके, तो मुझे राउंड ऑफ करके लिखना है 0.23%। ठीक, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है derive. Oh my goodness, derive an expression. Okay, an expression to show how you would calculate the percentage by mass of iron in the iron wire. All right, sounds crazy. Use x to represent the average titer. Okay, यानी जो इन दोनों को ऐड करके एवरेज टाइटर आएगा उसको x से रिप्रेजेंट करना है, and y represents the mass of iron wire used. Okay, क्योंकि मास ऑफ आयरन वायर तो हमें गिवन ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर, राइट गाइस। हाँ, नहीं गिवन था, इसलिए उसने y बोल दिया। ओके 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 ओके, या ये ये भी गिवन नहीं था, इसलिए y क्या दिया, और जो टाइटर हमसे निकलवाता वो उसने वो टाइटर नहीं निकलवाया, उसने कहा उसको x रिप्रेजेंट कर लो। मास ऑफ आयरन चाहिए मुझे आयरन वायर में, तो मेरे पास ओके मेरे पास कंसंट्रेशन है 0.0200, और मेरे पास इसके टाइट्रेशन की टाइटर वैल्यू कितनी है, x, है ना। इसको क्या कह दिया उसने, इसकी एवरेज वैल्यू को x, यानी मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता है, मुझे इसका वॉल्यूम पता है x। चलें सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप इज 1000 cm क्यूब में आपके पास KMnO4 के मोल्स हैं 0.0200 मोल्स ऑफ KMnO4। ओके, तो अगर आपके पास x cm क्यूब है, ओके, तो मैं यहाँ कोड कर देता हूँ, ये जो x है ना एवरेज टाइटर,
ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ KMnO4 को। एवरेज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 को, सही है। तो अगर ये xcm³ है तो ये कितना हो जाएगा? तो मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव बोलो या KMnO4 बोलो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, हो जाएगा 0.020 into x divided by 1000 moles। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। और हम जानते हैं कि इन दोनों के दरमियान 1:5 का रेशियो है, राइट। तो मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा? MnO4 negative and Fe2 plus has 1:5 का रेशियो। तो अगर मेरे पास 0.020 into x है डिवाइडेड बाय 1000, सो बताइए ये कितना होगा? तो मेरे पास यहां से मोल्स ऑफ Fe2 प्लस कितने आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे 0.020 मल्टीप्लाई बाय x इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय 1000। सही है जी, ये मेरे पास मोल्स आ गए Fe2 प्लस के। अच्छा जी, अब ये जो मोल्स ऑफ Fe2 प्लस हैं ये हमारे पास कितने वॉल्यूम के अंदर थे? 25 cm³ के अंदर थे, आई थिंक सो। यस, ये रहा 25 cm³ में। और आपने ये 25 cm³ कहाँ से लिया था? 250 में मेकअप किया था। तो अब हमारा थर्ड स्टेप होगा, फॉर 2 मार्क्स इट्स अ लेंथी पार्ट, लेंथी क्वेश्चन। 25 cm³ में आपके पास कितने मोल्स हैं? वेट, हम इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं आगे, तो इसको जरा करें सॉल्व। तो मेरे पास मोल्स ऑफ Fe2 प्लस कितने आ जाएंगे? मोल्स ऑफ Fe2 प्लस मेरे पास कितने आ रहे हैं? ये आ जाएंगे मेरे पास मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आ जाएंगे इन 25 cm³। उप्स, ये मल्टीप्लाई होगा, इससे डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 टाइम 10 टू द पावर -4x। सॉरी गाइस, मैं जगह कम है मेरे पास, काम काफी ज्यादा है। फॉर 2 मार्क्स इट्स लॉट ऑफ वर्किंग एक्चुअली, दैट्स क्रेजी। अच्छा, 25 cm³ में आपने इतने मोल्स कैलकुलेट कर लिए थे। 1 टाइम्स 10 टू द पावर -4 इंटू x, राइट। इंटू x की बात नहीं है, x कर लो। तो अगर 250 cm³ आपने लिया था वॉल्यूम, तो उसमें कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास moles of Fe2 plus is basically 1 into 10 to the power -3x, right? Fourth step, moles of Fe2 plus आ गए तो मैं mass of Fe2, mass of आयरन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ AR ऑफ आयरन से। AR ऑफ आयरन है हमारे पास 55.8 अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। तो मेरे पास मास ऑफ आयरन कितना आ जाएगा? 0.0558x ग्राम। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करनी है परसेंटेज। तो मेरा फिफ्थ स्टेज, परसेंटेज ऑफ आयरन कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ आयरन कितना आ गया? 0.0558x डिवाइडेड बाय मास ऑफ आयरन। और मास ऑफ आयरन एग्जामिनर ने मुझे कितना शो किया हुआ है? y ग्राम। तो मैंने y से डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो ये मेरे पास आंसर कितना आएगा? 5.58x डिवाइडेड बाय y।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.58x divided by y, and that's the expression examiner wanted to know about from you. सही है? काफी मुश्किल है for 2 marks. Lot of working actually. The student left the solution of Fe2 plus in sulfuric acid without a stopper for a few days. Okay, without a stopper. इसका मतलब जो solution of Fe2 plus है can contact more with oxygen in air. Can contact more with oxygen. Okay. वो कह रहे हैं the student repeated the titration and found the average titer was lower. Okay. And that's because of the same reason. ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा. जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो टाइटर वैल्यू भी कम हो जाएगी. सही? कैन आई सजेस्ट व्हाई? सेम रीजन. तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज बिकॉज Fe2 plus ions will oxidize with air, oxidize with oxygen in air to give Fe2 plus ion, oh sorry, Fe3 plus ions. This lowers the amount of Fe2 plus in the solution, hence lower the titer value of, lower the volume, oh my goodness, lower the volume of MnO4 negative, that is lower titer value. All right. Next, in step 2, the sulfuric acid is used to dissolve iron in the iron wire. Suggest the other function of the sulfuric acid in this experiment. Step 2 के अंदर हमने देखे रिएक्शन करवाया था ना, तो FeSO4 और हाइड्रोजन गैस बनी थी. तो वो कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? नहीं, वो तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है. To slow down the oxidation of iron, 2 ions. Iron 2 ions की ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करता है. That's a fact. स्टेप 2 में हमने iron wire is dissolved in 20 cm cube of excess sulfuric acid. excess लिया था हमने, और excess इसलिए लिया था ताकि वो स्लो डाउन करे and made up to the volume of the slow to the iron reaction dissolved in sulfuric acid to form Fe2+. अब iron 2 ions में कन्वर्ट हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड स्टिल एक्सेस अमाउंट के अंदर है, तो जाहिर सी बात है वो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा, स्लो डाउन करेगा. ठीक है, या दैट्स द रीजन. Name an appropriate piece of apparatus to measure the volume of sulfuric acid in step 2. Give a reason for your answer. ओ भाई मैंने 20 cm³ मेजर किया है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? तो 20 cm³ मेजर करने के लिए मैं, जाहिर सी बात है, एक्यूरेट वॉल्यूम तो नहीं है ना मेरे पास, 20.00 नहीं लिखा हुआ उसने, जस्ट 20 cm³. इसका मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, वैसे भी वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है.
तो जब एक्सेस अमाउंट के अंदर कोई चीज होती है तो वो वैसी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, तो आप उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर यूज कर सकते हो, राइट। सिंस we do not need accurate volume, so to measure 20 cm cube of H2SO4, we can use measuring cylinder. Okay, I think we need to write that. Just hold on a second. इसको उठाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं और यहाँ लिखते हैं हम यहाँ लिखते हैं कि not an accurate volume. So मैं यहाँ burette यूज नहीं कर सकता, कैन नॉट यूज ब्यूरिट। ब्यूरिट तो 0.05 cm क्यूब भी मेजर करता है ना, यहाँ पर नहीं है ऐसी सिचुएशन, जस्ट ब्यूरिट, ठीक है। That's the end of question number 1. Let's move on to the next question. My goodness. Okay. Seems like tricky है पेपर 5 अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर ना करें, इसको प्रैक्टिस ना करें। A student uses apparatus shown to calculate the relative molecular mass of a gaseous alkane. The experiment took place at 298 Kelvin and 101 kilopascal. इसका मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस है भाई अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये 1 atm प्रेशर है, राइट। आप इसको RTP भी कह सकते हो कि RTP पे कैलकुलेशन होगी, सही है। ओके, आगे चलते हैं। आगे तो चलते हैं। खास बात ये है कि ये मेरा टॉप पेन बैलेंस है। माय गुडनेस व्हाट आई एम डूइंग। ये मेरा टॉप पेन बैलेंस है, ये मेरा गैस सिलेंडर है जिसमें मैंने एल्कीन गैस ली हुई है, और ये मेरा वॉल्व है जिससे मैं गैस का फ्लो कंट्रोल करता हूँ। तो पहली तो बात यहाँ से आपके सामने ये आ रही है कि ये जो आपके पास एल्केन गैस है ये नॉन पोलर है, सही है भाई। और जाहिर सी बात अगर ये नॉन पोलर है तो इनसॉल्युबल इन वाटर है, विच इज व्हाई ये गैस ओवर वाटर कलेक्ट हो रही है। तो पहली तो ये कि एल्केन गैस इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज नॉन पोलर। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इस वॉल्व को जो कि गैस के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, अगर मैं इस वॉल्व को सही तरह से फिक्स ना करूं तो गैस यहाँ इस वॉल्व से लीक हो सकती है। सो दिस गिव्स यू द सोर्स ऑफ एरर। गैस कैन लीक फ्रॉम दिस वॉल्व, सो गिव द सोर्स ऑफ एरर। ओके, एक और खास बात आप नोट करें, ये जो हमारे पास मेजिंग सिलेंडर है, इस मेजिंग सिलेंडर के अंदर लार्ज ग्रेजुएशंस तो हैं लेकिन स्मॉल ग्रेजुएशंस नहीं है, राइट। सो अगेन दिस विल गिव यू द सोर्स ऑफ एरर बिकॉज यहाँ से गैस का एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर नहीं हो सकेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए स्मॉलर ग्रेजुएशंस आर मिसिंग, स्मॉलर graduations are missing, so this might be the source of error। सही, ये आपकी डिलीवरी ट्यूब है जिससे गैस जो है वो पास हो रही होगी। The alkane is flammable, ओके। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जो लोअर चेन एल्केन्स होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, जो हायर चेन एल्केन्स होते हैं
वो फ्लेमेबल नहीं होते। इसका मतलब इट माइट बी द लोअर चेन एल्केन। ठीक है, फ्लेमेबल है तो इसका मतलब कैन बी अ लोअर चेन एल्केन, कैन बी अ लोअर चेन एल्केन। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्टूडेंट ओपन्स द टैप एंड अलाउज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कीन गैस इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, displacing water. Okay, the gas in the measuring cylinder is allowed to reach room temperature and the volume recorded. Okay, the process is repeated and the measurement of the mass of the gas cylinder and total volume of gas collected are recorded in the table. तो ये इस गैस के सिलेंडर का मास है। अच्छा, ये जीरो था, ये भी जीरो है, इसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू है आपके पास। ठीक है, ऑलराइट, ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड और ये टोटल मास ऑफ गैस लॉस्ट फ्रॉम द सिलेंडर। ओके ओके ओके। सो भाई अगर मुझे सी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो इनिशियल वैल्यू है उससे मैं ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी इन वैल्यूज को। तो इनिशियल वैल्यूज से बाकी सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये कॉलम कैसे फिल होगा, 164.02 माइनस ए, और एक वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको आपके रेफरेंस के लिए, ये हो जाएगा 164.02 minus 163.77. So this will give you how much? 0.25, हम यहाँ लिख देंगे 0.25। ठीक है, ये एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी कि भाई वो जो ये वाली ए वैल्यू है ये कौन सी है, वो ए वैल्यू ये है, इनसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप, यानी इस इनिशियल को इन सब से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके लिए मैंने एक कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम इन इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.37। फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.54। फिर हमारे पास आंसर आता है 0.76। फिर हमारे पास आंसर आता है 1.00। फिर हमारे पास आंसर आता है 1.30। फिर हमारे पास इनिशियल से अगर मैं 162.072 को सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर आएगा 1.64। फिर मेरे पास आंसर है 1.91 और फिर मेरे पास आंसर है 2.91। ओके, 1.91 2.91। ओके, वो पूछ भी यही रहे हैं। कंप्लीट कॉलम सी इन द टेबल, द फर्स्ट रीडिंग हैज बीन डन फॉर यू, गिव ऑल वैल्यूज टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो मैंने सारी वैल्यूज 2 डीपी पे दी हैं इत्तेफाक से। ठीक है, ये 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ लिख देते हैं 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड ऑफ टोटल मास ऑफ गैस लॉस्ट अगेंस्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, यूज अ क्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो ये ग्राफ मैंने प्लॉट करके दे दिया है आपको, आपकी आसानी के लिए, आपको आसान रखे। ये आ गया ग्राफ प्लॉट, और आप नोट करें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसका मतलब ये रिलायबल है, एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं सर्किल द पॉइंट विच यू थिंक इज मोस्ट एनॉमलस ऑन योर ग्राफ। ओके, 1 मार्क का पार्ट है ये। तो ये भी अनोमलस पॉइंट हो सकता है और ये भी अनोमलस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, मैंने इसको सर्किल किया है, आप इसको भी सर्किल कर सकते हैं। देखो, जब आप इसको सर्किल करोगे तो इसके लिहाज से रीजन दोगे, जब आप इसको सर्किल करोगे तो इसके लिहाज से रीजन देते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर अगर कोई चीज है तो इसका मतलब ज्यादा वॉल्यूम है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के नीचे अगर कोई एनोमलस पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब लोअर वैल्यू है। अच्छा, ये सिचुएशन क्वेश्चन की अराउंड 10 ईयर्स अगो पूछी जाती थी पेपर 5 में, कि अगर हायर वैल्यू होगी तो क्या होगा और अगर लोअर वैल्यू होगी तो क्या होगा। सिंस अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इतने कॉम्प्लिकेटेड और डेप्थ में लेके नहीं जाता, इसलिए वो पूछ रहा है आपसे सर्किल द पॉइंट, पॉइंट्स नहीं कह रहा, सर्किल द पॉइंट विच यू थिंक इज मोस्ट एनॉमलस ऑन योर ग्राफ। ओके, तो वो आप एक कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से दे सकते हो, मैंने ये दिया आपको, राइट। फिर वो कह रहे हैं सजेस्ट one reason that explains the anomalous results you have circled।
देखो अनॉमलस रिजल्ट कह रहा है, रिजल्ट्स नहीं कह रहा, और वन रीजन मांग रहा है। पहले तो मल्टीपल रीजन मांगता था ना, अब सिर्फ वन रीजन मांग रहा है। तो भाई क्या रीजन है, क्या रीजन है भाई इसकी, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अम, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें टोटल मास ऑफ गैस लॉस्ट से एक्सप्लेनेशन देनी है या वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड से एक्सप्लेनेशन देनी है। वॉल्यूम ऑफ टोटल मास से मैं नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज उसकी रीजन है, मैं वॉल्यूम से दे सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि चार्ल्स लॉ स्टेट्स that volume is directly proportional to temperature। तो अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम के लिहाज से दे देते हैं, मास के लिहाज से नहीं दे सकते, बिकॉज मुश्किल होगा मास के लिहाज से काफी ज्यादा बच्चों के लिए। तो मैं वॉल्यूम के लिहाज से दूंगा, और ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड है ये यहाँ पर आया है, यानी हायर देन एक्सपेक्टेड, इसको यहाँ पर होना चाहिए था, राइट। इट हैज टू बी हियर, जबकि यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज हायर देन एक्सपेक्टेड, राइट। ओके, माय गुडनेस। पहले तो ये बताओ कि मैंने लिया किसको है, above the line लिया मैंने, anomalous point is above the line, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस collected is higher than expected। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लाइन के ऊपर, वो लाइन से ऊपर हो गया, ठीक है। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस changes as temperature changes। सही है ना, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा, सही है। यानी ये हमारा, ये जो पॉइंट आया नॉर्मलस, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आया, टेम्परेचर चेंज हो गया था। उसके बाद वो कह रहे हैं यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यू हैव यूज्ड इन योर कैलकुलेशन, these must be selected from your line of best fit, give the gradient to three significant figures। तो बेटा मैंने एक ग्रेडियंट जो है वो आपके लिए ये लिया है, राइट, जो मुझे सबसे ज्यादा आसान लगा, और एक ग्रेडियंट जो है ना वो मैंने आपके लिए ये लिया है जो कि मुझे बहुत ज्यादा आसान लगा। और ग्रेडियंट क्या होता है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0.00, और दूसरा ग्रेडियंट हो जाएगा आपका 740, एंड दूसरा कौन सा, 740 एंड 1.75, 1.75। ओके, आपको पता है ना ग्रेडियंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया आपको। तो ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इसका मतलब डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ओके, तो ग्रेडियंट बेसिकली इस वक्त मेरे पास क्या है, ग्रेडियंट मेरे पास है 1.75 माइनस 0.00, राइट। और इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम मास, वाई एक्सिस पे मास है ना, राइट। और फिर है आपके पास 740 माइनस 0, और ये क्या होगा cm क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेडियंट मेरे पास कितना आ रहा है,
ये हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाय 740, तो मेरे पास यहाँ से आ रहा है 2.3648 इंटू 10⁻³ तो मुझे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है ग्रेडियंट का, तो मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरह से दूंगा 2.36 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सीएम क्यूब। सही है, तो पता चल गया ना कि ये ग्राम है, ये सीएम क्यूब, द ग्राम पर सीएम क्यूब। ओके, फिर वो कह रहे हैं द आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट्स दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आर की वैल्यू इज फिक्स्ड, जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। Use the ideal gas equation in your answer to C1 to calculate an experimental value for the MR of the alkane gas. Give your answer to 1 decimal place. Show your working. Okay, 1 decimal place. C part 1. तो C part 1 में आपके पास तो डेंसिटी आई है, that is mass per unit volume. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PV equals to nRT लेते हैं. Okay. आप सब जानते हैं कि ये जो आपके पास मोल्स हैं, ये मास अपॉन एमआर होता है, ये आर, ये टी. ओके, अच्छा मैं कर लेता हूँ, मुझे एमआर कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा एम आर टी अपॉन पी. अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, मैं समझाने के लिए स्टेप्स ले रहा हूँ. एम ओवर वी क्या होता है, डेंसिटी. आर टी अपॉन पी, बोले यस और नो, दिस इज गोइंग टू बी योर डेंसिटी. मैंने A1 में ये एक्सप्लेन पूरा एक्सप्रेशन करवाया आपको कि दिस इज डेंसिटी, राइट. आप चेक कीजिएगा कैलकुलेशंस में, स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में. अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मास तो है 2.36 इंटू 10⁻³ तो मेरे पास वॉल्यूम कितना है 1 cm³. सो गाइस, एक काम करना है, काम ये करना है भाई कि एम आर इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है, ये बेसिकली आपका ग्रेडियंट है ना. चलो, तो ये हो जाएगा 2.36 इंटू 10⁻³ ये मास हो गया कितने cm³ में, 1 cm³. और तुम जानते हो ना, हम हमेशा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करते हुए मीटर क्यूब में रखते हैं, तो 1 cm³ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. तो मैं इस 1 cm³ की जगह, मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 cm³ 2.36 इंटू 10⁻, ये कह सकता हूँ ना मैं इसको. तो मैं 1 cm³ किसके इक्वल होगा, 1 टाइम 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6, राइट. ये तुम्हारी डेंसिटी होगी. आर की वैल्यू कितनी है 8.31. टेम्परेचर तुम्हें कितना दिया हुआ था 298 केल्विन, बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग में. प्रेशर तुम्हें कितना दिया हुआ था 101 किलो पास्कल, ये रहा. सही है ना. इसको तुमने पास्कल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में हमेशा पास्कल होता है, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 101,000 पास्कल्स, राइट. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. तो यहां से मेरे पास जो एम आर है वो आ जाएगा 57.864, और मुझे वो कह रहे हैं 1 डेसिमल प्लेस में आंसर दो, तो मैं बोलूंगा 57.9. फिर वो आपसे कह रहे हैं suggest the identity of the alkane gas, explain your suggestion. Okay. अच्छा, हमने ओ लेवल केमिस्ट्री पढ़ी है और आपने भी पढ़ी है, ठीक है. आपके पास एम आर कितना है 57.8. तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम, CnH2n + 2 इक्वल्स टू 57.9. ओके, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 58 ले लेता हूँ. अच्छा चलो, 57.9 ही रख लो. कार्बन का मास 12 होता है, ये हो जाएगा 12n. हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इंटू 2n + 2 इक्वल्स टू 57.9. तो ये हो जाएगा आपके पास 14n + 2 इक्वल्स टू 57.9. तो ये हो जाएगा आपके पास
सो ये कितना हो जाएगा? सही है, ये हो जाएगा 14n इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57.9 डिवाइडेड बाय 14। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57.9 divided by 14 is going to be 4.13। तो मैं 4.13 को राउंड ऑफ करके 4 ले लेता हूँ। तो अगर मैं ये वैल्यू उठाकर फॉर्मूले में रखता हूँ CnH2n+1 CnH2n+2 में, तो ये हो जाएगा C4H2 टाइम्स 4+2। तो ये हो जाएगा C4 for the 8 plus 2 10, so C4H10 is going to be your ये shorter chain alkane, which is why it is flammable, right? So आप यहाँ पर क्या लिखोगे? The calculated MR of alkane is closely matches with the experimental MR given in C part 2. See, I hope it makes sense to you. ठीक है. All right, next, my goodness, it's such a lengthy paper. Suggest 2 ways in which the accuracy of the measurement may be improved. Accuracy of the measurement may be improved. तो आपको याद है हमने मास बैलेंस कितना यूज किया था? हमने 3 डेसिमल प्लेस का मास बैलेंस यूज किया हुआ, राइट? नहीं, 2 डेसिमल प्लेस का मास बैलेंस यूज किया हुआ। यस, ये है ना, 2 डेसिमल प्लेस का मास बैलेंस यूज किया हुआ है। तो हम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए 3 डेसिमल प्लेस का मास बैलेंस यूज कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वी कैन यूज मास बैलेंस टू 3 decimal प्लेस। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा डेसिमल प्लेस होता है परसेंटेज एरर उतना ही कम हो जाता है। दिस लोअर्स द परसेंटेज एरर, दिस लोअर्स द परसेंटेज एरर and improve the accuracy and improved the accuracy। ठीक है, क्लास में मैंने कराया भी है कि 2 dp का जो परसेंटेज एरर होता है वो ज्यादा होता है, 3 dp का परसेंटेज एरर कम होता है, राइट? अच्छा, दूसरी रीजन क्या हो सकती है? दूसरी रीजन आपको ये पता है कि हमने जो मेजरिंग सिलेंडर लिया था गैस कलेक्शन के लिए, हम उसकी जगह गैस भी यूज कर सकते हैं। सही है ना?
और जाहिर सी बात है इसमें स्मॉलर ग्रेजुएशंस नहीं है, तो हम स्मॉलर ग्रेजुएशन अगर वाला सिलेंडर यूज कर लें तो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों चीज़ें, कैन यूज measuring cylinder with a smaller graduations. Also, we can use gas range, graduated gas range, graduated gas range. Okay. Next, apart from wearing eyes protection or a lab coat, state one safety precaution which the student must take when carrying out this experiment. भाई एल्केन फ्लेमेबल है, इसने बताया था आपको, तो नेकेड फ्लेम को उससे दूर रखना है। Keep the naked flame away from alkene because it is flammable. Okay. उसके बाद next है, the student is told that the sample of the alkene gas are sometimes contaminated with more volatile alkene. ओहो, okay. सबसे पहली बात contamination की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात मोर वोलेटाइल एल्कीन की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं ना कि जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये तो आप जानते ही हैं। सो मोर वोलेटाइल एल्कीन मींस लेस बॉइलिंग पॉइंट, और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब उसका एमआर भी कम होगा, लेस एमआर, है ना। वो क्या कह रहे हैं आपसे, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ दिस वुड अफेक्ट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। तो ग्रेडियंट क्या था तुम्हारा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, दैट इज योर डेंसिटी, यानी ये था तुम्हारा। देखो आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ये तो तुम चेंज ही नहीं कर रहे हो। तो जब तुम इन तीनों कांस्टेंट्स को हटाओगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी हट जाएगा, साइन ऑफ इक्वलिटी हटेगा तो उसकी जगह पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वल हो जाएगा तुम्हारे ग्रेडियंट के। इसका मतलब तुम्हारा एम आर ज्यादा, ग्रेडियंट ज्यादा, तुम्हारा एम आर कम, ग्रेडियंट भी कम। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बात यहाँ लिख देते हैं कि एम आर इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम आर टी अपॉन पी। भैया ये तीनों क्या है आपके पास, कांस्टेंट, इनको आप हटा दीजिए तो आपका साइन ऑफ इक्वलिटी हट जाएगा, साइन ऑफ इक्वलिटी हटेगा तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ आपका ग्रेडियंट आ जाएगा। सही है, एंड दैट शोज कि आपका जो ग्रेडियंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम आर। पहला तो पॉइंट ये हो गया, ग्रेडियंट is directly proportional to the MR। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो आपके पास कंटामिनेटेड है मोर वोलेटाइल एल्केन की, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसका एमआर भी कम होगा, जब उसका एमआर कम होगा तो उसका ग्रेडियंट भी कम होगा, राइट। लोअर बॉइलिंग पॉइंट मींस, lower boiling point of alkane means lower MR of alkane. This lowers the gradient. This lowers
द ग्रेडियंट। अच्छा जी, अब ग्रेडियंट भी कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक गैस तो आपके पास एल्कीन की थी ही, कंटामिनेशन की वजह से कुछ और गैसेस भी आ गई होंगी, जिसकी वजह से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो contaminated gases increases the volume of alkane. So contamination produces more volume of alkane given in the sample। ठीक है, पहले भी एक एल्केन थी, कंटामिनेशन की वजह से भी एल्केन होगी, तो ओवरऑल एल्केन का जो साइज है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, in each experiment the gas was allowed to reach the temperature of room temperature before the volume was measured। Explain why this was necessary for the calculation of the MR of the alkane। भाई आप जानते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से एमआर ऑफ एल्केन पे फर्क पड़ेगा। तो मुझे एक्चुअली इस टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है ताकि मेरे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम आए, एग्जैक्ट एमआर आए। तो हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट ही लिया हुआ है ना हम लोगों ने पूरे एक्सपेरिमेंट में, दैट इज 1 atm एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको एग्जामिनर ने 101 किलोपास्कल लिखा हुआ है। एट कांस्टेंट प्रेशर as temperature changes, volume of gas changes। और हम इसको लिखेंगे बॉयल्स, सॉरी बॉयल्स कह रहे हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, सजेस्ट हाउ द रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट कुड बी इम्प्रूव। यार मैंने बहुत दफा बता दिया आप लोगों को, रिलायबिलिटी जो होता है ना, वो डिपेंड करता है इम्प्रूवमेंट को, एक्यूरेसी को। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, एक्यूरेसी को। Reliability belongs to accuracy by improving the experiment. By improving the experiment। ठीक है, और मैं इम्प्रूव कैसे करूंगा? जब मैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा, और जब एक्सपेरिमेंट रिपीट हो जाएगा तो उसके थ्रू वैल्यूज मिलेंगी, उन वैल्यूज का मैं एवरेज लूंगा। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, by repeating the experiment and then taking the average and taking the average to get the MR through gradient। ठीक है, that's the end of question number 2, that's the end of the paper। I hope it makes sense to you, thank you very much।